IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त अदा की जाएगी। What a shame. What a mockery of journalism. This is what Pakistan has fired. At least have the sense to burn these brown fields if one of our projectile and one of our missiles has gone and hit a field. Karachi is burning. Karachi has been taken over. Go and call Karachi. Find out where it's burning. Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft. At least show me the electronic signature of one aircraft that Pakistan, of one UAV, one drone that Pakistan has fired there. That's why we say, don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. And I repeat, we don't need this stupid, this shameful media to tell us that they themselves are embarrassed that what they are doing. पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत में पाकिस्तानी हमला हुआ है तो इंडिया उसका डिजिटल सिग्नेचर सामने लाए। भारत चाहता है कि हम उस पर हमला करें तो हम उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। DGISI ने तमाम भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। DGISPR ने गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादतगाह पर हमले की कोशिश की। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में मुतादिद जगहों पर हमले किए जिनमें मासूम शहरी और बच्चे शहीद हुए। भारत ने 2 साल के बच्चे को शहीद किया। इस पर भारतीय मीडिया ने भी जश्न मनाया। DGISPR ने बताया कि भारत आज़ाद कश्मीर में भी शहरियों को निशाना बना रहा है। LOC पर शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है, जबकि हम LOC पर भारत के फौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हमने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। The fact of the matter is, yes, there is terrorism. There is terrorism that's happening in Pakistan on daily basis. And who is sponsoring it? It's India. I'll give you the facts of this Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan. There are terror camps actually inside India who are supporting, who are fueling this terrorism which is going on in Pakistan. Are they only involved in Pakistan? No, they are involved elsewhere also. They are involved in Canada also. They are involved elsewhere in the other countries also. You must have heard it again and again, but just to understand that why they are doing this, what they are doing right now, is because they don't want the world to ask these questions. भारत में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी हो रही है जिससे भारत स्पॉन्सर कर रहा है। भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। वक्त आ गया है कि भारत हुकूमत से पूछा जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान में भारतीय जाहिरियत के दस्तावेजी सबूत आलमी मीडिया के सामने रख दिए। बताया कि भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब हमला किया तो पाकिस्तान में 57 परवाजें फ़ज़ा में थीं। भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। भारत इसराइली साख्ता ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है। कल से अब तक 77 इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह किया। भारत मसाजिद और इबादतगाहों को निशाना बना रहा है। भारत इल्ज़ाम लगाता है, सबूत भी नहीं देता और हमला कर देता है। भारत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कनाडा और दीगर मुल्कों में भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। We changed our rules of the game in the air. We had a plan. We thought that Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows. His leader knows that his number, one of his member, fight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he claims that I've seen an explosion in the air.
रफाल गिराए ही नहीं, रफाल में भारतीय पायलट्स की गुफ्तगू भी इंटरसेप्ट की। पाक फजाया के अफसर की DGISPR के हमरा आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय हमलों के खिलाफ पाक फजाया 2 मिनट के अंदर सरगर्म हो गई। भारत से 1 घंटे से ज्यादा टकराव की सूरत हाल रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारतीय हमलों में किसी पाकिस्तानी फौजी की शहादत नहीं हुई। No, they live in movies. I must give credit. They have a very good theatre. They have very good this Bollywood, but that's not the reality. You have to grow out. Please stop living in Bollywood. Grow up. भारत बॉलीवुड की दुनिया से निकल आए। DGISPR भारतीय हुकूमत के नाम नहाद तजज़ियाकारों पर तबसरा। कहा, भारत अपना जदीद तरीन तैयारा गिराए जाने पर मायूस है। हम उसकी मायूसी को जानते हैं। भारत ने ड्रोन भेजे, हम उनका मलबा दिखा सकते हैं। भारत के लोग पूछ रहे हैं पहलगाम में सिक्योरिटी नाकाम क्यों हुई। DGISPR ने भारतीय मीडिया की तरफ से पाकिस्तान में भारतीय हमलों से तबाही मचाने के झूठे दावे का पोल भी खोल दिया। भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा, भारतीय मीडिया पर PL-15 मिसाइल की दिखाई गई तस्वीर से ज़्यादा अच्छे मॉडल बच्चे बना लेते हैं। सऊदी अरब, ईरान, अमरीका और बरतानिया ने पाक भारत कशीदगी में कमी की कोशिशें तेज कर दी। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर आदिल अल जुबैर नई दिल्ली के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारिजा इसहाक डार से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची पाकिस्तान और भारत के दौरे के बाद कल सऊदी अरब जाएंगे। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर से राबता। कशीदगी में फौरी कमी और बराह रास्त बातचीत पर जोर। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान राबतों में बहाली के इकदाम की हिमायत करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। बरतानिया की भी पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। भारतीय फौज शिकस्त के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। भारतीय फौज ने हुजैरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोइरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग से आज़ाद कश्मीर में 5 शहरी शहीद, 29 जख्मी हुए। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की रेंज कंट्रोल पोस्ट, पोखरान मोटर बक्सर पोस्ट, केलर सेक्टर में दुश्मन की बहरी पोस्ट खालसा टॉप, रख चक्री सेक्टर में दाना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह की गई। इससे पहले पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर में जंड वजारत पोस्ट और पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नागटक को गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। समानी बक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 48 ड्रोन गिरा दिए। कल से अब तक भारत के 77 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इसराइली साख्ता ड्रोन बिहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में गिराए गए। फौज दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DGISPR का कहना है कि तमाम ड्रोन मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन को भी ट्रैक करने की सलाहियत है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स के दौरान ड्रोन मार गिराने का ऑपरेशनल तरीकाकार है। पांच भारतीय तैयारे और 77 ड्रोन गिराकर पाकिस्तान ने रिवायती जंग में वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। कहा, भारत के तैयारे और ड्रोन गिराना पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियतों और फौजी बरतरी का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन की जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया और करेगा। झूठे बयानिए में नाकामी से भारत को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के F-16 और J-F-17 तैयारों को नुकसान पहुँचने की रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैन अल-अक़वामी सरहद से बाहर कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की। पाक फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल, चौकस और मुस्तैद है।
भारतीय न्यूज चैनल आज तक ने पाक भारत कशीदगी में गलत खबरें चलाने पर माफी मांग ली। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में हैक शुदा बयानात और सोशल मीडिया पर इधर उधर से ली गई मालूमात की भरमार ने सही और गलत की जांच मुश्किल बना दी। सही मालूमात की छानबीन के बावजूद कुछ गलत खबरें नशर की गईं, जिस पर माफी चाहते हैं। भारतीय सीनियर सहाफ़ियों की भी भारतीय न्यूज़ चैनल्स के प्रोपेगेंडे पर तनकीद। सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा कि सहाफ़त जंगी जुनून नहीं होती, फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जाता। एक और सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि भारतीय चैनल्स की रिपोर्ट्स न सिर्फ झूठी और गुमराहकुन थी बल्कि इश्तियाल अंगेज भी थीं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने कहा कि गोदी मीडिया ने सच्चाई को दफन कर दिया। भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने गुज़िश्ता रात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर पर भारतीय हमलों का प्रोपेगेंडा किया था, झूठ का बाजार गर्म किया था। पाकिस्तानी हुकाम ने इन रिपोर्ट्स को झूठा, गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया था। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भारतीय मीडिया को मजाक करार दे दिया। कहा भारतीय मीडिया चीख पुकार से क्या हासिल करना चाहता है, खुदा के वास्ते लोगों को हैजान में मुब्तला करके और अफरा तफरी फैलाने से बाज रहें। भारतीय शहरी भी अपने मीडिया पर बरस पड़े। कहा भारतीय न्यूज़ चैनल्स झूठ का बाजार बन गए हैं। भारतीय मीडिया कौमी हजीमत और सुबकी बन चुका। मीडिया ने सहाफती उसूलों की धज्जियां उड़ा दी है। ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता। मोदी हुकूमत ने भारत के ही एक नामवर सहाफ़ी और अस्करी तज्जियाकार प्रवीण स्वाहनी की तैयार करदा 11 मिनट की वीडियो भी ब्लॉक कर दी है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई। वीडियो में फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण स्वाहनी ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने भारत के 4 जंगी जहाज तबाह किए। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक क्राइसिस सिचुएशन है, लेकिन जंग नहीं। ऐसे में मोदी हुकूमत अगर माकूल और बाशऊर लोगों की आवाज़ें भी बंद कर रही है तो यकीनन कुछ गड़बड़ है। न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी को खुला चैलेंज। कहा एक और झूठ। मिस्टर गोस्वामी ने कल एक बेबुनियाद दावा किया। अर्नब अपने दावे का सबूत पेश करे, अगर वो सच्चे साबित हुए तो मैं किसी तीसरे मुल्क में उन्हें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। हामिद मीर का कहना था कि अर्नब गोस्वामी के इस दावे से जाहिर होता है कि इन दिनों उनके हवासों पर मैं किस कदर सवार हूँ। भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने एक प्रोग्राम के दौरान हामिद मीर पर इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने इदारे से 3 अफराद को नौकरी से निकालने का इल्ज़ाम लगाया था। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि इन अफराद के पास हामिद मीर के पास मौजूद इतलात से मुतज़ादम इतलात थी और उन्होंने हामिद मीर की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी बुनियाद पर हामिद मीर ने इन 3 अफराद को इदारे से निकाल दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस और अफवाहों का बाजार गर्म। भारतीय सार्फिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय दिफाई निज़ाम ने मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी जेट मार गिराया। ये दावा झूठा है। इस वीडियो का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत की किसी हालिया झड़प से नहीं, बल्कि इसे पहलगाम हमले से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। जियो फैक्ट चेक की टीम ने तज्जिये के बाद इसे फेक पाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी। पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL 10 के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मैचेस मुलतवी करने का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। पीसीबी और खिलाड़ी शोहदा के लवाहिकीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। क्रिकेट हमारी खुशी का जरिया है, मगर मुल्क की खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPL को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हालत जंग में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती।